व्हाट इज मैटर, सबसे पहले तो मैटर डिफाइन करता हूं, उसके बाद में मैं इसके क्लासिफिकेशन पे जाऊंगा. व्हाट इज मैटर? सी द डेफिनेशन ऑफ केमिस्ट्री इज इट इज अ साइंस ऑफ मैटर, इट इज अ स्टडी ऑफ मैटर. सो व्हाट डू यू मीन बाय मैटर? क्या होता है मैटर? विदिशा, व्हाट इज मैटर? Matter is smallest particle of atom which exists in nature. इट इज द स्मॉलेस्ट. नहीं नहीं, वो तो एटम की डेफिनेशन बोल दी तुमने. मैटर क्या होता है? एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ अ मैटर. यस दिशा. any sub Sir, matter is anything that occupies space and has mass. Anything around us which can occupy some volume which has certain mass. हमारे आसपास वो सारी चीजें that can have certain volume and that can have certain mass, उसे मैटर कहा जाता है. क्लियर? सो डेफिनेशन लिखो सबसे पहले तो मैटर की. मैटर हेडिंग लिखना है, देन डेफिनेशन. एनीथिंग अराउंड अस, anything around us which has certain mass and can occupy volume. Anything around us which has certain mass and can occupy volume. सर एक बार फिर से दोहराएंगे. Anything around us which has certain mass and can occupy volume. Anything around us which has certain mass and can occupy some volume. Okay. Now matter can be classified into three category classically. Modern way में तो हम 5 ways में इसको distinguish करते हैं. First, solid. So solid, liquid and gas. These three are the categories of matter. Solid, liquid, gas. Classically we can distinguish matter into three categories, and in modern way we have two more category. कौन-कौन से category है वो दोनों? Plasma and Bose-Einstein. Plasma and Bose-Einstein condensate. Yeah? तो उसका अभी हमारे सिलेबस में 11th 12th में नहीं है, इसलिए मैं यहाँ पे नहीं लिखा हूँ. तीन में ही चलते हैं. Solid, liquid and gas. Now the question is, which are the basic properties by which we can distinguish them? जिन्हें इनके बेसिस पर इन्हें डिस्टिंग्विश किया जा सकता है. So the first one is intermolecular force of attraction. Intermolecular force of attraction. Intermolecular force of attraction is maximum for solid. काफी बाइंड होते हैं solid के particles. They cannot move from one point to another point. ये एक solid है marker. इसका जो part matter यहाँ पर है वो यहाँ से यहाँ move नहीं करेगा, इतना tightly bounded है, क्यों move नहीं करते हैं. Liquid can move inside the liquid only. Gases can move in the whole container. Minimum force of attraction, maximum force of attraction. क्या इतना हमें समझ में आता है? The first way to distinguish them, to classify them, to separate them is on the basis of intermolecular force of attraction. It is maximum for solid, it is minimum for the gas. Clear? Aman, Bhumika? Excuse me, sir. Excuse Yes. me, sir. Karsh? सर मैक्स है और लिक्विड के लिए क्या लिखा है? Sorry, you are not audible properly. Pardon? सर सॉलिड के लिए आपने मैक्स अट्रैक्शन लिखा है, गैस के लिए मिनिमम लिखा है, तो लिक्विड के लिए क्या है? मॉडरेट, बीच में ये मॉडरेट लिखा है सर मैंने. बहुत ये रिलेटिव है. अगेन आई एम नॉट राइटिंग एनी वैल्यू, इट इज रिलेटिव थिंग्स.
maximum in this, minimum in this, and average moderate in this liquid. Yeah, this word Okay, is sir. moderate. Yes. Thermal energy. Next term. Thermal energy. It is the energy associated with the molecules of a system due to its movement, due to its motion. या किसी भी सब्सटेंस के जो मॉलिक्यूल्स है उनका जो काइनेटिक एनर्जी, उनका जो रोटेशनल एनर्जी है, उनके मूवमेंट के कारण मे बी पॉसिबल उसके मॉलिक्यूल्स वाइब्रेट हो रहे हो, रोटेट कर रहे हो, मूव कर रहे हो, सारे एनर्जी का एडिशन. एंड दिस एनर्जी डिपेंड्स ओनली ऑन टेम्परेचर. If you decrease the temperature, their movement will be going to freeze out. वो freeze हो जाते हैं. Clear? क्या लगता है सबसे ज्यादा मूवमेंट गैसेस का होगा या सबसे ज्यादा मूवमेंट सॉलिड का होगा? Gases, sir. Gases. 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 Yes, sir. So it is maximum for this, minimum for this, moderate for this. इसको मैं define भी कर देता हूँ. It is energy due to movement. It depends on temperature. Movement के कारण एनर्जी है और टेम्परेचर पे डिपेंड कर रहा है. कल्याणी कदम क्लियर है इतना? कल्याणी एंड कदम. Yes, sir. Yes, sir. Okay. चलो हमने मैटर डिफाइन किया because I have used this word matter in definition of atom, smallest part of a matter. मुझे matter define करना था, कर दिया. Now we have one single chapter based on this solid state, liquid solution and gaseous state. This will take roughly 15-16 lecture. इसमें 9-10 lectures. इसमें भी हमें roughly 7-8 lectures लगेंगे. तो बहुत डिटेल में हमें जाना है. अभी सिर्फ इंट्रोडक्शन था मैटर क्या होता है. और अच्छा कुछ बच्चे जैसे JA MA के यहाँ पर कवरिंग भी अटेंड कर रहे हैं. ये अगेन डिपेंड, ऐसा कुछ हार्ड एंड फास्ट नहीं है ना कि एज इट इज जैसा वहां पढ़ाया सब कुछ वैसा ही हो रहा है. मतलब कभी कभी ये होता है कुछ ऐसे क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं, मैं कुछ ऐसा टर्म यूज कर लेता हूँ तो एक दो चार डेफिनेशन आगे पीछे हो सकती है. मैंने मेटर शायद मुझे आई डोंट रिमेंबर कि उन्हें वहां डिफाइन किया नहीं किया, बट यदि नहीं किया होगा तो आगे ना कहीं मैं उसे करने वाला जब भी वो यूज आएगा. सो अगेन सेम टीचर, मतलब इवन टीचर्स भी अलग होते हैं, कंटेंट डिलीवर विल बी सेम. एक प्रॉपर फॉर्मेट होता है रेजोनेंस का कि हमें ये कंटेंट डिलीवर करना है इस चैप्टर के लिए या इस सिलेबस के लिए. तो ऐसा नहीं कि किसी को कम या किसी को ज्यादा दिया है. काफी बार जब जैसे क्रॉस क्वेश्चनिंग हो जाती है उस पर भी डिपेंड कर जाता है. Atomic terms.
atomic terms. First one, atomic number, it is denoted by Z. It can be defined in two manners. I am waiting, first copy everything. तेजल एंड तनुजा, जब भी कॉपी हो जाए कंफर्म करना मुझे, मैं एक्सप्लेन करता हूँ फिर। Yes, sir. सर यस, सर एटम मास नंबर पढ़ के बताओ ना। it is a sum of protons plus neutrons collectively called nucleons. So यहाँ से हमें एक और definition पता लगी है. Nucleons means what? Protons plus neutrons, they are collectively called nucleons. The thing which is present inside the nucleus is called nucleons. So it is a sum of protons plus neutrons present inside the nucleus of an atom. इसे ऐसा भी बोल सकते हैं, it is the number of nucleons present inside the nucleus of an atom. Here, P proton and neutron दोनों का sum mass number. It is a number of protons in an atom present in an atom. Now it is the number of protons in an atom. Z equal to P. P protons को represent कर रहा है. We can also define atomic number with respect to number of electrons. It is a number of electrons in a neutral atom. पता है यहाँ पर न्यूट्रल वर्ड मेंशन है, यहाँ पे न्यूट्रल वर्ड मेंशन नहीं। हाँ मुझे ये बताओ, बोर्ड पे देखना, कॉपी मत करो अभी। हमारे पास लिथियम है, इसका एटॉमिक नंबर है 3। क्लियर? नाउ इफ यू रिमूव वन, इफ यू टेक go from Li to Li plus, we are going for +1 charge on the lithium. What does it mean? क्या मतलब है इसका? क्या हमने इसको एक प्रोटॉन एक्स्ट्रा दिया है? एक इलेक्ट्रॉन दे रहा है। दो पॉसिबिलिटी हो सकती है पॉजिटिव चार्ज की। लिथियम में स्टार्टिंग में 3 प्रोटॉन थे, 3 इलेक्ट्रॉन थे। क्लियर? 3 प्रोटॉन्स 3 इलेक्ट्रॉन्स, ये इलेक्ट्रॉन्स ये प्रोटॉन्स। इधर तुम इसमें प्रोटॉन स्कोर कर दो तो +1 चार्ज, या फिर इलेक्ट्रॉन्स को कम कर दो तो एक्स्ट्रा पॉजिटिव चार्ज। तो क्या हम न्यूक्लियस से प्रोटॉन्स को ऐड कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं क्या कभी भी? Can we add or remove protons from the nucleus, or we cannot? Cannot.
we cannot in general, yes we can only in some rare cases in nuclear reaction. हम nuclear reaction की बात नहीं कर रहे हैं, general reaction की बात कर रहे हैं. So 3 protons are still remaining, but out of 3 electrons we are removing one of the electron. That's why plus 3 charge minus 2 charge net plus 1 charge हो गया है. So positive and negative both the charge can be there only because of addition of electron or removal of electron. Protons को कभी disturb नहीं किया जाता है, तो protons को disturb नहीं कर रहे हैं, but atom neutral है, electron को हम कम या ज्यादा कर सकते हैं, इसलिए neutral word use करना पड़ा है. क्या अभी क्लियर है पूरा पार्ट जितना बोर्ड पे लिखा है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay. Sakshi, Shradul, Shekhar, is that okay? Sir, can you please repeat it? Which one? Atomic number or mass number? Sir, the explanation of lithium. फिर से बोलो. सर वो आपने लिथियम का एक्सप्लेनेशन दिया ना, Li3 that चलो मैं one. एक एग्जांपल देता हूं, मैं उसका ही उससे हटके एक और एग्जांपल लेता हूं. Cl plus electron, Cl minus. Sodium Na plus electron. The negative charge is there due to presence of one extra electron, due to addition of one extra electron. The positive charge is there due to removal of electron. So positive charge क्यों आया? Electron को remove किया. Negative charge क्यों आया? Electron को add किया. So the charge on any given atom or ion will be there due to either addition of electron or removal of electron. Protons को disturb नहीं किया जाता है, ये बोला गया है. Is that okay now? Yes, sir. Find number of protons, neutrons and electrons in N3 minus ion. इसके लिए तुम्हें कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड होगी, वो मैं बता देता हूँ. नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7, मास नंबर 14. Atomic number is 7, mass number is 14. You need to report 3 answers: protons, neutrons and electrons separately. 3 ऐसे आंसर बताने हैं. And if you get the answer, you can type in chat box. मुझे जल्दी नहीं चाहिए, सही चाहिए आंसर. अच्छा, जैसे अब मैं थ्योरी कवर कर रहा हूँ, मैंने अपने से एक एग्जांपल दिया. If I am giving example of question from my side, not from the booklet, तुम्हें लेक्चर के नोट्स में कंटिन्यूएशन में लिखना है. ये लिखा, सेकंड का एग्जांपल लिखा, फिर थर्ड पे आ गए. हाँ, मैंने बोला do this question, question number 3 from the booklet. वो होमवर्क नोटबुक में करना है. मतलब ऑलरेडी भी क्वेश्चन तुम्हारे पास है बुकलेट में, होमवर्क नोटबुक में, क्लियर. और ऑलरेडी क्वेश्चन नहीं है तो फिर क्वेश्चन लिखना पड़ेगा लेक्चर नोट्स में कंटिन्यूएशन. इज दैट ओके? Waiting for your answers in chat box. नंबर ही लिखने तुम्हें बस, एक नंबर कॉमा, सेकंड नंबर कॉमा, थर्ड नंबर, इस फॉर्म में आंसर रिपोर्ट करना है. और जैसा मैंने रिपीट किया था, केमिस्ट्री की क्लास फॉर द फर्स्ट चैप्टर्स, इंट्रोडक्शन टू केमिस्ट्री एंड एटॉमिक, तब तक साथ में चलेगी. दोनों में कॉमन चीजें हैं, कुछ भी डिफरेंस नहीं है. उसके बाद सेपरेट होंगी केमिस्ट्री की क्लास. इवन द सेकंड ट्रैक, ऑर्गेनिक ट्रैक, विल बी सेपरेट. मैं एमबी और जेबी का. Shavani, electrons are not correct. हाँ मैं सुन रहा हूँ, बोलो. Sir, can you please repeat how to solve it? नहीं, what I need to repeat? I need to repeat question or solution? I have not explained this question. मैं अभी तुम्हें टाइम दिया है. Now I am going to explain everything. तो
तो अभी तक मैंने तो एक्सप्लेन नहीं किया है। हाँ, यदि क्वेश्चन रिपीट करने का बोल रहे हो, फाइंड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स इन N3 माइनस आयन, ये क्वेश्चन है। संजना, वन ऑफ द आंसर इज नॉट करेक्ट। विधि, तुम्हारा भी, तुमने थोड़ा सा एक्सचेंज कर दिया है न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन को। प्रणव पाटिल इज करेक्ट। ईशान, समथिंग इज रॉन्ग, कुछ गलत किया है तुमने भी। वेदांत, वन आंसर इज नॉट करेक्ट। अबेल, करेक्ट आंसर। Nitali, one answer is not correct, one is correct. Prathamesh, all three are correct. Disha, one answer is not correct. इलेक्ट्रॉन्स में जहां कंफ्यूजन के लिए मैंने थोड़ा सा चेंज किया था, वहीं पे मैक्सिमम बच्चों के गलत आंसर आ रहे हैं। चलो, अगेन वी आर इन द वेरी स्टार्ट ऑफ द आवर सिलेबस, हम बहुत बिगिनिंग स्टेज पर हैं। सो डेफिनेटली आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग कि सारे बच्चे से सही आंसर दें, गलती होगी डेफिनेटली, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट वो गलतियों से सीखना, समझना और फिर आगे बढ़ना, वो बहुत मैटर करता है। क्लियर? फर्स्ट डेफिनेशन, एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। क्या हम किसी भी एलिमेंट में यहाँ पर एटॉमिक नंबर और यहाँ पे मास नंबर लिखते हैं? ऐसा कुछ लिखा जाता है? कंपेयर करो, नाइट्रोजन 7, 14, Z का वैल्यू कितना आ रहा है? Is that okay? Z is 7, A is 14. क्या हमें इतना समझ में आता है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. चलो, अब हम आते हैं इस पर Z, protons. As I have already explained in this examples, number of protons and neutrons, nucleus में जो present है, we cannot disturb them, we cannot remove or add neutrons and protons. So proton neutron को मैं चेंज नहीं कर सकता हूँ, जो है वो है। तो Z होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन, ये होता है प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स। अभी लिखा था मास नंबर में, मास नंबर इज प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स। क्या हम ये बोल सकते हैं फर्स्ट पार्ट का आंसर 7, P को 7 रखो तो N भी 7 आ जाएगा, ये भी 7, 14 माइनस 7, 7। सो इन दोनों पार्ट का आंसर 7 and 7 होगा। इज दैट ओके? क्या इतना क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अब आते हैं इलेक्ट्रॉन पर। इन फर्स्ट केस, सेकंड केस, इन 3 माइनस, how many electrons you need to add in nitrogen to get nitrogen 3 minus? -3 चार्ज चाहिए, कितने इलेक्ट्रॉन्स ऐड करेंगे हम इसमें? Come on. 3. 3 electrons. 3 electrons, so there will be 10 electrons overall. So नाइट्रोजन न्यूट्रल में 7 इलेक्ट्रॉन्स है, ये एक आयन है, कितने इलेक्ट्रॉन्स और ऐड कर दिए? 7 ऑलरेडी है, 3 ऐड कर दिए, 7 + 3 10। आंसर 7, 7, 10 इज द फाइनल आंसर। क्या अभी क्लियर है ये क्वेश्चन? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके, रुशद क्लियर?
Giving you 2 minutes. First copy everything. देखो जिन बच्चों ने ऑलरेडी लिखा है, कुछ क्लासेस पहले अटेंड की होगी, उन्हें लिखने की जरूरत नहीं है। और जिन बच्चों ने लिखा है, आई डोंट नो, आई डोंट थिंक कि तुम्हें क्लास में अटेंड करने की जरूरत है। मतलब दिस इज नॉट कंपल्शन टू एवरीवन, स्पेशली जेएमए बैच के बच्चों के लिए। न्यू एमए बैच के बच्चे जरूरी नहीं अटेंड करना ना। तुमने जितना कवरिंग मतलब नहीं किया है तो करना है, अदरवाइज इट इज नॉट कंपल्सरी। सो इट्स अप टू यू, तुम क्लास अटेंड करना चाहो ना चाहो। जो पुराने बच्चे हैं दूसरे बैच के, उनमें से कुछ बच्चों ने लेट ज्वाइन किया था, उनके लिए कवरिंग के लिए लिंक सेंड की गई थी। The word iso means something is same, something is similar. कुछ तो सिमिलर है, कुछ सेम है। आइसो का मतलब ये होगा isotopes, 2 or more atoms of same element, मतलब सेम एलिमेंट होना चाहिए, हाइड्रोजन, कार्बन, कार्बन, with same atomic number but different mass number. दो या उससे ज्यादा एटम that belongs to same element, they have same atomic number but different mass number. Hydrogen can have 3 types of atoms, one with mass 1 unit, second with mass 2 unit, third with mass 3 unit. इसे हाइड्रोजन कहा जाता है, इसे ड्यूटेरियम कहा जाता है, इसे ट्रिटियम कहा जाता है। And carbon can also have 2 isotopes with mass 12, with mass 14, C12, C14. Atomic number same 6 and 6, mass number is different. Atomic number is same 1, 1, 1, mass number is different. मतलब डिफरेंट क्या है यहाँ पर? एटॉमिक नंबर होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स तो सेम है, फिर क्या डिफरेंस है? यहाँ पर डिफरेंस है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स में, 0 न्यूट्रॉन्स, 1 न्यूट्रॉन, 2 न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन्स आर डिफरेंट, 6 न्यूट्रॉन्स, 8 न्यूट्रॉन्स, तभी तो 8 + 6 14 आया है, यहाँ पे 6 + 6 12 आया है। क्या हमें पहला टर्म समझ में आता है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. आइसोबार, अब क्या सेम है आइसोबार में? समथिंग शुड बी सेम। आइसो वर्ड यूज किया है यहाँ पर 40 40 40, मास नंबर इज सेम बट एटॉमिक नंबर्स आर डिफरेंट। 14 14, mass number is same but the atomic numbers are different. Yeah, 2 or more atoms of different elements. पहले तो ये ध्यान रखना है, यहाँ पे डिफरेंट एलिमेंट यूज किया था, यहाँ पे सेम एलिमेंट यूज किया था, सेम एलिमेंट। तो सेम एलिमेंट, एटॉमिक नंबर सेम है तो एलिमेंट सेम होगा, एटॉमिक नंबर डिफरेंट है, एलिमेंट डिफरेंट होगा। तो विद सेम मास नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर। समझ में आ रहा है दोनों केस? एक बार एटॉमिक नंबर सेम, एक बार मास नंबर। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. साहिल बोर्ड से क्लियर? Yes, sir. उत्कर्षा, तन्मय, कौन पाटिल? प्रणव पाटिल, प्लीज म्यूट योरसेल्फ।
सर यस सर वो 5 और 6 के मेन वर्ड समझने आ रहे वो आइसो आइसो। मतलब क्या लिखा है ये नहीं समझ में आ रहा है? नहीं सर वो हाँ वो वर्ड आइसोटोन्स, TONES, आइसोटोन्स, आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स। सो आइसोटोन्स, आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स, ये वर्ड लिखा हुआ है। बाकी कॉपी करो, मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ फिर सब कुछ। यस सर। Excuse me, sir. यस करो। Sir, in 6 number isoelectrons, the second line with same number of total, is it electrons or और हाँ बोलो। sir, वो electrons है क्या वो word यस total इट के इज बाद? इलेक्ट्रॉन। Oh, okay, sir. चलो मैं पूरा एक बार पढ़ देता हूँ, कंफ्यूजन नहीं होगा। Two or हाँ, sir. more is atom molecular ions. It can be anything, atom molecular ions with same number of total electrons, with same number of total electrons or same number of valence electrons. Either the total electrons will be same or the valence electron will be same. Valence means outer shell में जो electrons होते हैं। नाइट्रोजन 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 3 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन 10 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है, ये मैं लिखाऊंगा अभी वैसे भी। 8 + 2 10 इलेक्ट्रॉन्स, 9 + 1 10 इलेक्ट्रॉन। नियोन एटॉमिक नंबर 10 10 इलेक्ट्रॉन्स। सोडियम 11 होता है, एक इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दिया 10 इलेक्ट्रॉन्स। अब आते हैं ऑर्गन, ऑर्गन में तो 18 इलेक्ट्रॉन्स है, ये सारे 10 इलेक्ट्रॉन्स वाले और इसमें 18 इलेक्ट्रॉन्स। हाउ इट इज आइसोइलेक्ट्रॉनिक विद देम, ये कैसा आइसोइलेक्ट्रॉनिक हो गया? बेसिकली 8 electrons are the valence electron, 8 electrons out of 10 are the valence electron. तो यहाँ पे valence electron सेम हो गए। और पता है नीट 2016 में ये क्वेश्चन आया था, एग्जाम में आया था, जिसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम थे और हमें उसके बेसिस पे उसे आइसोइलेक्ट्रॉनिक बताना। तो काफी बच्चे कंफ्यूज हो गए, वैलेंस इलेक्ट्रॉन वाली डेफिनेशन नहीं ध्यान की तो गलत भी करके आए। Second example, N2 7 + 7, 2 nitrogen atom, 1 can have 7 electron, 2 can have 14 electron. सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर 14 होता है, फास्फोरस का होता है 15 + 1 चार्ज, एक रिमूव कर दिया 14। सो एटम, मॉलिक्यूल, आयन, तीनों को मैंने आइसोइलेक्ट्रॉनिक बताया इस टर्म को एक्सप्लेन करने के लिए। ये एटॉमिक नंबर वगैरह सब कुछ मैं अभी आज ही लिखाऊंगा, मैं याद भी करना है अप टू एटॉमिक नंबर 30। क्लियर? तो तब तुम्हारे लिए थोड़ा सा इजी रहेगा, Okay, समझ sir. में आएगा। Sir, क्लियर आदित्य? बोलो साक्षी। sir, what is written after 2 or more in 6 point? 2 or more species, SPE नहीं लिखा है, मैं लिखूं अच्छे से उसे। SPECIES species। Okay, ये sir. टर्म यूज किया है क्योंकि एटम, मॉलिक्यूल, आयन कुछ भी हो सकते हैं, तो एक जनरल टर्म यूज कर लिया। अब तक मैं एटम यूज कर रहा था, तुम देखोगे मोर एटम्स, यहाँ पे मैंने ये यूज किया है क्योंकि एटम की जगह मॉलिक्यूल और आयन भी हो सकते हैं, राइट? Yes, sir. अच्छा, आइसोटोन्स तो मैंने एक्सप्लेन किया ही नहीं। 2 or more atoms with the same number of neutrons, टोन्स, न्यूट्रॉन्स, सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हो गए। अब न्यूट्रॉन्स क्या होता है? मास नंबर होता है p + n, ये होता है p। तो p + n में से p को माइनस करो तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आ जाएंगे। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आर सेम। चलो देखते हैं कितने न्यूट्रॉन्स है ट्रिटियम में। इसका a - z, 3 - 1 2 न्यूट्रॉन्स, 4 - 2 2 न्यूट्रॉन्स। इसमें भी 2 न्यूट्रॉन है, इसमें भी 2 न्यूट्रॉन, आइसोटोन्स हो गए। इज दैट ओके? Yes, sir. मृदुला? Yes, sir. Yes, sir. यस Yes, सर। sir. Yes, sir. Yes, sir.
For the first 2-3 weeks definitely will go somewhat slow. हम एकदम से पेस पे नहीं जाएंगे क्योंकि अभी हमारा टारगेट ये नहीं है कि सिलेबस कुछ खत्म करना है या बहुत सारा एक साथ पढ़ाना है. फर्स्ट टारगेट तो ये है कि तुम ट्यून्ड अप हो जाओ चीजों से, तुम्हें समझ में आने लगे क्लियर, तुम्हें एक प्रोसेस मेथोडोलॉजी क्लियर हो, कैसे पढ़ा जाता है, कैसे यहाँ पढ़ाया जा रहा है. इट इज दिस एंट्रेंस एग्जाम्स आर समवॉट डिफरेंट फ्रॉम 10th बोर्ड 12th बोर्ड एग्जाम्स. थोड़ा सा हम उस मोड में आ जाए पहले क्लियर. उसके बाद जैसे अभी फर्स्ट 2 वीक तुम्हारी 3 क्लासेस होंगी वीक में, फिर वो 4 दिन भी होगी, फिर 5 दिन भी होगी, और अभी 2 लेक्चर हो रहे हैं, फिर 3 लेक्चर्स भी होंगे. तब धीरे धीरे फ्रीक्वेंसी भी बढ़ेगी, कंटेंट भी बढ़ता चला जाएगा. किस नंबर पे थे हम? 7. Yes, sir. सर वो वर्ड क्या है 7 नंबर के आगे? आइसोस्टर्स, ISOSTERS, आइसोस्टर्स लिखा हुआ है वो. एक्सक्यूज मी सर. यस नीरज. सर आइसो डायपर्स की सेकंड लाइन में सम डिफरेंस है या सेम डिफरेंस है? Same difference. 2 or more atoms with same difference in number of neutrons and protons.
चलो सुनो, isosters, the word iso, something should be same. क्या सेम होगा? Number of electrons same होंगे first thing, and the number of atoms are also same. How many atoms are there? 2 nitrogen, 1 oxygen, 3 atoms. How many atoms are here in CO2? 1 carbon, 2 oxygen, 3 atoms. कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं N2O में? नाइट्रोजन में होते हैं 7 इलेक्ट्रॉन्स, 2 nitrogen, 7 plus 7. Oxygen can have 8 electrons. Carbon can have 6. Oxygen can have 8. 2 oxygen can have 8 plus 8. 22 electrons, 22 electrons. 3 atoms, 3 atoms. So when atoms as well as number of electrons both are same, isosters. Is that okay, Kavya Shah? Yes, sir. काव्य आवाज नहीं आई. Yes, sir. Okay, so it is basically Kavya, right? Not Kavya. Kavya. Yes. काव्य. Okay, वो दोनों का स्पेलिंग सेम होता है, I don't know. ठीक है, काव्य. Isodiaphers, 2 or more atoms with same difference in number of neutrons and protons. So यहाँ पे neutrons minus protons same होंगे. अब क्वेश्चन आता है n क्या होता है? मास नंबर which is p plus n, इसमें से p को माइनस कर दिया, ये आ गया नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स. एटॉमिक नंबर प्रोटॉन्स होता है. So neutrons minus protons, this quantity should be same. Example 3, इसमें कितने न्यूट्रॉन्स हैं? 1 प्रोटॉन, 3 प्रोटॉन. यदि 1 प्रोटॉन है 2 न्यूट्रॉन, 4 न्यूट्रॉन्स. So n minus p, 2 neutrons minus 1 proton, 4 neutrons minus 3 proton. क्या मैं ये समझ में आता है? इसमें 3 प्रोटॉन है और 4 न्यूट्रॉन है, 1 प्रोटॉन है और 2 न्यूट्रॉन है. क्या इतना क्लियर है लास्ट एग्जांपल में? Yes, sir. किसी को डाउट हो कुछ तो पूछ लो. ये दोनों टर्म शायद 10th तक तुमने नहीं सुने होंगे किसी ने भी. ये नए टर्म्स हैं. सर 8th पॉइंट फिर से रिपीट कीजिए. हाँ सर. Which one? फिर से repeat कीजिए. 8 देखो 8th टर्म फिर से रिपीट कीजिए. 8th में 2 एटम लिए of different elements. Now in first we have certain neutron and proton. In second we have certain neutrons and protons. इसमें न्यूट्रॉन्स माइनस प्रोटॉन्स, मतलब प्रोटॉन से कितने एक्सेस में न्यूट्रॉन्स है. जस्ट फॉर एग्जांपल, प्रोटॉन से 50, न्यूट्रॉन से 52, 2 न्यूट्रॉन एक्सेस में है. क्लियर? एक और केस है जिसमें 40 प्रोटॉन्स है, 42 न्यूट्रॉन्स है. यहाँ पर भी 2 न्यूट्रॉन एक्सेस में. तो जितना एक्सेस न्यूट्रॉन्स हैं वो सेम हो गए आइसोडायाफर्स. 42 minus 40, 2. 52 minus 50, 2. So difference in neutrons and protons are same. Neutrons 2, proton 1, neutrons 4, protons 3. एक न्यूट्रॉन एक्सेस में, यहाँ पे भी एक न्यूट्रॉन एक्सेस में. क्या अभी क्लियर है? यस सर. सर. लिसनिंग. सर न्यूट्रॉन का नंबर बड़ा नहीं रह सकता क्या? किसका? न्यूट्रॉन का. जहाँ पे 50 और 52 था तो न्यूट्रॉन 52 और वो छोटा है. तो शायद कुछ उल्टा पूछना चाह रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है. मैंने न्यूट्रॉन से 52 बोले थे. मैंने न्यूट्रॉन से 52 बोले थे. सर फिर प्रोटॉन से 52 मतलब. हाँ, तो यदि तेरा क्वेश्चन ये है क्या सर प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन से ज्यादा हो सकते हैं? एक केस है जिसमें प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन से ज्यादा होते हैं, वो केस है हाइड्रोजन का. बस हाइड्रोजन के अलावा ऐसा कोई भी केस नहीं है. इस हाइड्रोजन में 1 प्रोटॉन है और 0 न्यूट्रॉन. बस इसके अलावा ऐसा कोई केस नहीं होता है जिसमें न्यूट्रॉन्स कम हो और प्रोटॉन्स ज्यादा हो. ठीक है? ओके सर. सर ये आपने भी बताया ना कि हाइड्रोजन केस में होता है, तो उसके आइसोटोप्स में भी वैसे ही होता है. नहीं, आइसोटोप्स तो अलग न्यूट्रॉन है ना. इसमें मैंने H11 स्पेसिफाई किया था ड्यूटेरियम के लिए स्पेशली. क्लियर? ओके सर. एटॉमिक मास यूनिट.
सर एमपी मास ऑफ प्रोटॉन है क्या? यस, चलो अब एक मिनट सुन लो, फिर कॉपी कर लेना, बच जाएगा तो कुछ। एटॉमिक मास यूनिट 1/12 मास ऑफ कार्बन 12 दिस इज द डेफिनेशन एक्सेप्टेड बाय आईयूपीएसी। इसको हम और डिराइव करके नहीं चाहते हैं, क्या होता है। नाउ 1/12 एज इट इज मास ऑफ कार्बन 12 एटम। अब कार्बन 12 में होता क्या है, कार्बन 12 एटम में 6 प्रोटॉन्स होते हैं, 6 टाइम्स ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन, 6 न्यूट्रॉन्स होते हैं, 6 टाइम्स ऑफ मास ऑफ न्यूट्रॉन्स, एंड इट आल्सो हैज 6 electrons, 6 times of mass of electron, but the mass of electron is very less in comparison to protons and neutrons। हम देखेंगे कितना मास होता है, ये भी हम देखेंगे। अभी के लिए में ये ध्यान रखना है, काफी कम होता है, इसे इग्नोर कर दिया जाता है। अब तुम 1000 में 1 ऐड करोगे, 1001 roughly 1000 लिख दोगे, अप्रोक्सीमेशन। अब क्वेश्चन ये आता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास कितना होता है। Mass of proton and neutron both are almost equal and equal to this value। तो जो 6 times of mass of neutron था, मैंने इसको भी mass of proton लिख दिया। 6 plus 6 12 times of mass of proton, 12 cancel हो गया। 1 mu is nothing but equivalent to mass of proton or mass of neutron, which is equal to this value। Is that okay? Yes, sir. Yes, sir. Yes, Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। Excuse me, sir. Yes, Can you please take example of sodium? take example of sodium। Yes, sir. नहीं समझा मैं, example for what, like AMU? Yes, sir. See, AMU is defined by IPSC in this manner. It is the 1/12 mass of carbon 12 atom, so I cannot take sodium here। पहली चीज तो ये। अब तुम्हारा क्वेश्चन है सर, यदि हम ऐसा कुछ करें, मास ऑफ, जैसे आपने कार्बन का मास निकाला है, क्या आप सोडियम का मास निकाल के बता सकते हो? हाँ, वो मैं करके बता देता हूँ। बट दिस इज द डेफिनेशन ऑफ 1 AMU which is defined with respect to carbon only। सोडियम के लिए ऐसा सब कुछ कैसे लिखेंगे वो भी मैं बता देता हूँ। चलो, not related to AMU, what is the mass of sodium? So sodium atom 11 23, 11 times of mass of proton, 12 times of mass of neutron, 11 times of mass of electron। ये जैसा कार्बन का मास लिखा था, सोडियम का 11 प्रोटॉन्स, 12 न्यूट्रॉन्स, 11 इलेक्ट्रॉन, इसे इग्नोर कर देंगे, दोनों को इक्वल कर देंगे। 23 टाइम्स ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन, सो 23 यहाँ पे दे भी रखा है, कार्बन 12 में 12 दे रखा था, तो 12 आ गया था। इसे रोके ना। Yes, sir. रेड दिख रहा है, नहीं दिख रहा है? दिख रहा है दिख रहा सर। है। रेड ही दिख रहा है या सिर्फ सब कुछ एक जैसा ही दिख रहा है, ब्लैक एंड व्हाइट? अच्छे से दिख रहा सर।
राइट एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर। तुम देखोगे 20 तक मैंने एटॉमिक नंबर मास नंबर दोनों लिखे हैं, दोनों याद रखने हमें। 21 to 30 एटॉमिक नंबर सबके लिखे हैं, मास नंबर आयरन जिंक कॉपर सिर्फ इनका लिखा है, जो ज्यादा यूजफुल है, जो यूज आते हैं, जो मुझे भी याद है। इनके अलावा इनके मास नंबर यदि कहीं यूज आएंगे तो एग्जाम में दिए हो। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम, अप टू 21, स्कैंडियम, टाइटेनियम टीआई, ये सुन लेना, ये शायद तुम्हें नाम एकदम नहीं क्लिक होंगे, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। और बहुत बार यूज आने वाले हैं ये नेक्स्ट 2-3 चैप्टर्स में। मैं किसी को भी मास नंबर नहीं बताऊंगा, क्वेश्चन दूंगा, तब याद रखना है, नेक्स्ट लेक्चर तक याद कर लेना है सभी को एटॉमिक नंबर मास नंबर। अच्छा मुझे बताओ, इसमें कितने बच्चे हैं जो एमए के अभी लेक्चर अटेंड कर रहे हैं, कवरिंग लेक्चर, जो एमए के बच्चे हैं जो एमए में ही कंटिन्यू करना करेंगे ऑन मतलब फर्दर। जो शिफ्ट हो गए वो बात अलग है, बट कितने बच्चे एमए के हैं जो कवरिंग लेक्चर्स अटेंड कर रहे हैं? रेज योर हैंड। चार बच्चे, मृदुला, प्रसन्ना, प्रजक, मिताली, दोनों मिताली नहीं, एक मिताली और एक मैथिली है। तो एक काम करते हैं, कल मॉर्निंग में मैं एक कवरिंग क्लास ले लूं, क्योंकि